And Naseem Shah 4 overs for 23, Afridi 4 overs for 34, and Shadab Khan 4 overs for 21. So Haris Rauf, can Pandya find an answer? Rauf bowls the first ball and Pandya whips it through the onside. They'll get one. Maybe he's timed it too well, and as a result they get only one because Shadab Khan does the fielding. Now every ball and every stroke is going to be worth a discussion. India need multiple strokes of every ball, and two of Virat's boundary strokes just falling inside the cushions there. Can India do the impossible? It looks pretty much impossible right now because India need 30 runs now to win and 29 to take it to a super over. If indeed India are to get there. Right now, I think it's still Pakistan's game. Here's Haris Rauf into Virat Kohli. Comes in, bowls, and Kohli drives this with an open face of the bat out towards deep point. He's only going to get one because there is a man there. And Pandya walks to the other end. This is again unbelievably good bowling by Haris Rauf. Really, the Indian bowlers have to look at this. The 100 of the partnership gets a big hand from the Indian dugout, but I don't think Pandya or Kohli are thinking about it. They're not interested in the 100 partnership. They are looking at the fact that India need 29 runs of 10 balls. Dinesh Karthik, the finisher, sits in the dugout waiting. Rauf bowls and Pandya swings and misses. This is where Pandya's weakness has been found, I think. The slow ball or the one that rises outside the off stump. He struggled there. Anything on his body or anything on the leg and middle stump, and Pandya is absolutely murdering that. But he's missed at least 8 or 9 deliveries there. And even a single there would make a big difference. But I think at the moment Pakistan have his number. Haris Rauf, you are a champion. You are showing what to do at the MCG. And he's doing it brilliantly. Again, just rolling his fingers and bowling that cutter. Can Pandya find some magic here? Rauf into Pandya, and Pandya this time gets no timing on the ball, but as a result will probably get, no, won't get more than one, just the one run. So what an over. What an over from Haris Rauf. 4 balls and I think 3 runs so far, if my memory serves me right. 28 required from 8 balls. So 4 balls have been bowled, 3 runs have been scored in this over after something like 16 odd came from the previous over from Shaheen Shah Afridi. Virat Kohli, can he conjure up some magic? He's got 2 balls against Rauf to do it and then 1 over to come. Rauf bowls and this time Kohli goes straight over the bowler's head. Has he got enough on it? Yes, he has. So he's got a big 6 standing firm, and Virat Kohli really turning on the clock, turning back the clock I should say, showing that this is his favourite format, his favourite opponents. And really, what a marvellous shot that is. The shot of the day, just standing there and putting it straight past over the bowler's head. Om Prakash Sharma telling me Virat Hardik 107 runs, best fifth wicket partnership for India in T20 International, surprising MS Dhoni and Yuvraj versus Australia in 2013. Please tell us if that partnership led India to win or lose. That would be an important statistic to add to this one. 138 for 4. Last ball of the 19th over coming up, 22 from 7 required. And here's Rauf into Kohli, and Kohli has lifted this one in the air. There's a man there. Is it going into the stands? It's gone into the stands. Virat Kohli, you champion. Back-to-back 6s, 16 runs of the last over. That's where he's brought it down to. And this former India captain really is standing tall today and telling all of those who were criticizing him that you can talk about all kinds of class. That is permanent. Form is what is temporary. But he won't be bothered how many he's got. He knows that India needs 16 to win this game and India need 15 to take it to a super over. Can Pandya match it now? It's going to be the privilege of Sunil Vaidya to describe that last over for you and see if India get there or Pakistan just squeeze it over. But 12 runs of the last 2 balls have made it a straightforward equation now. 15 to take it to a super over, 16 to win the game. बिल्कुल, और क्रिकेट का जो रोमांच है और जो उत्तेजना है वो अपनी चरम सीमा पर। भारत को चाहिए 16 रन 6 गेंदों में, 19 ओवर में 144 4 विकेट पर, और पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 जो गगनभेदी छक्के जड़े
विराट कोहली ने छक्के छुड़ा दिए उन्होंने हारिस राउफ के, और राउफ भी हक्के बक्के भौचक्के रह गए। जिस तरह से पलटवार किया, काउंटर अटैक किया विराट कोहली ने राउफ की गेंदों पर, और कुल मिलाकर 15 रन उस ओवर में आए राउफ के। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, और जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है विराट कोहली का, उसने कमाल किया। और फिर से उम्मीदें जग गई हैं। केवल अब 16 रन चाहिए 6 गेंदों में। 19 ओवर पूरे हो चुके हैं और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय और पाकिस्तानी समर्थक काफ़ी शोर कर रहे हैं, और ज़्यादातर दर्शक भारतीय और पाकिस्तानी ही हैं। 90,000 से ऊपर दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इस महामुकाबले को देखने के लिए। और अब सबकी नजरें अंतिम ओवर पर, और वो करने वाले हैं नवाज, और उनके सामने है हार्दिक पांड्या। 40 के व्यक्तिगत योग पर 16 रन चाहिए 6 गेंदों में। और बाउंड्री राइडर्स देखें तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ है, और डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, और फाइन लेग सीमा रेखा पर भी एक फील्डर है। तो देखते हैं कि इन बाउंड्री राइडर्स को क्या भेद पाते हैं हार्दिक पांड्या, और हवाई हल्ले करके रन बटोर पाते हैं नवाज के सामने। दुआओं में हाथ जुड़े हुए हैं भारतीय समर्थकों के, प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत मंजिल तक पहुंचे। और ये पहली गेंद, और टॉप एज लगाया गेंद, फील्डर उसके नीचे आसानी से उस कैच को लपक लेंगे, और अक्रॉस द लाइन उस गेंद को मारने के लिए गए थे हार्दिक पांड्या, और गेंद टॉप एज लेकर सीधे चली गई एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और एक आसान कैच लपका, और ये 5वां विकेट टपका भारत का हार्दिक पांड्या के रूप में 144 के ही कुल योग पर। और अब 5 गेंदों में 16 रन बनाने हैं। ये गेंद जो कि अंदर की तरफ आ रही थी, उस गेंद को खेलने के लिए गए, और गेंद टॉप एज लेकर गई सीधे फील्डर बाबर आजम के हाथ में, जिन्होंने एक आसान कैच लपक लिया। तो हार्दिक पांड्या 40 रन बनाकर आउट हुए 37 गेंदों में। कॉट बाबर बोल्ड नवाज, और भारत 144 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब फिनिशर के रूप में अब जिनकी ख्याति दुनिया भर में है, दिनेश कार्तिक, वो आए हैं, जबकि केवल 5 गेंदें बची हैं भारतीय पारी की, और मंजिल अभी भी दूर है। 16 रन अभी भी चाहिए। पहली गेंद तो डॉट बॉल गई, विकेट भी खो दिया भारत ने। तो डीके क्या वो चमत्कार कर पाएंगे विराट कोहली के साथ मिलकर, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। सभी की सांसें रुकी हुई और धड़कनें तेज हो गई हैं। यहाँ पर मौजूद 90,000 से ज़्यादा दर्शक, और कमेंट्री करते हुए हम भी और तमाम श्रोता भी इस समय काफ़ी उत्सुक होंगे, रोमांचित होंगे कि आखिर इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है। तो नतीजे के लिए 5 गेंदों का इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा, और नवाज ने 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर ये कामयाबी दिलाई और इस साझेदारी को तोड़ा। कितने रन आए 5वें विकेट के लिए? 31 पर गिरा था, 113 रन आए, और इस बीच अगली गेंद पर केवल 1 रन मिला दिनेश कार्तिक को, लेकिन अपना खाता खोल लिया। और अच्छा ये किया कि विराट कोहली को स्ट्राइक पर ले आए हैं। 4 गेंदों में 15 रन चाहिए। सबकी निगाहें विराट कोहली पर लगी हुई कि क्या विराट कोहली इस असंभव सी जीत को संभव बना पाते हैं। क्या विराट कोहली पाकिस्तान के जबड़े से इस मुकाबले को खींचकर भारत के पक्ष में कर पाते हैं। 15 रन चाहिए 4 गेंदों में। 19.2 ओवर हो चुके हैं। विराट कोहली पर सबकी निगाहें, सबकी नज़रें। काफ़ी बड़ा लंबा मैदान है, और बाउंड्री राइडर्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में। अगली गेंद करने के लिए तैयार नवाज। विराट कोहली को 145 भारत 4 विकेट पर, और ये गेंद, और इस बार सीधा मारा है। केवल 1 रन ही मिलेगा। दूसरे रन के लिए भी पलट रहे हैं, खतरा हो सकता है। डायरेक्ट थ्रो मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन नज़दीकी मामला नज़र आ रहा है। केवल 2 ही रन भारत के खाते में जुड़ते हुए, और स्कोर अब हुआ 147 5 विकेट पर, और अब 3 गेंदों में 13 रन चाहिए। ये जो गेंद होगी, गेंद नंबर 4 20वें ओवर की, ये निर्णायक साबित हो सकती है जहां तक इस मैच के नतीजे का सवाल है। अगर कोई बड़ा स्ट्रोक आ गया, गेंद को आसमां दिखा दिया लंबा,
तो उम्मीदें बरकरार रहेंगी। नवाज की अगली गेंद विराट कोहली को फुल टॉस और भेज दिया उसे मिड विकेट के ऊपर और 6 रन और नो बॉल का भी इशारा अंपायर ने किया है। तो 7 रन जुड़ते हुए भारत के खाते में। नवाज ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिरी ओवर में ये नो बॉल नवाज की और गेंद चली गई 6 रनों के लिए। तो 7 रन भारत के खाते में एकदम से जुड़ गए। नो बॉल का इशारा। 153 अब स्कोर हो गया है 5 विकेट पर और अब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए। इस एक गेंद ने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि ये गेंद निर्णायक साबित हो सकती है। और बाबर नवाज इस समय कुछ पूछ रहे हैं रॉड टकर से कि आखिर वो गेंद नो बॉल क्यों करार दी गई। इरेस्मस से भी वो चर्चा कर रहे हैं। रॉड टकर, इरेस्मस, कप्तान बाबर आजम, काफ़ी बहस होती हुई मैदान पर, क्योंकि वो गेंद नो बॉल भी हुई और उस पर छक्का भी आ गया। तो 7 रन आ गए भारत के खाते में। इसका मतलब अब 3 गेंदें बची हैं और 3 गेंदों में भारत को बनाने हैं 6 रन। 6 160 का टारगेट है। तो 3 गेंदों में 6 रन अब चाहिए भारत को और ये काम अब काफ़ी आसान हो गया है। यदि एक बड़ा हिट आ गया इस गेंद पर या एक छक्का भी लग गया तो वो काम तमाम हो जाएगा पाकिस्तान का इस मुकाबले में। जबकि स्ट्राइक पर हैं खुद विराट कोहली, जो ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 82 पर नाबाद 52 गेंदों में और इस बार बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के वाइड होनी चाहिए। जी हाँ, तो काम आसान किए दे रहे हैं नवाज भारत का और अब केवल 5 रन चाहिए 3 गेंदों में। तो मोहम्मद नवाज ने नवाजा है एक तरह से भारत को अपनी दिशाहीन गेंदबाजी करके, नो बॉल करके, फुल टॉस करके विराट कोहली को, और काम आसान कर दिया है। 3 गेंदों में 5 रन चाहिए मोहम्मद नवाज उनके सामने, जबकि फ्री हिट है ये। देखते हैं फ्री हिट का कितना लाभ उठा पाते हैं विराट कोहली। ओ, लेकिन आउट तो नहीं होंगे और गेंद चली गई है थर्ड मैन की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी मिल जाएगा और तीसरे रन के लिए भी पलट गए हैं विराट कोहली। तो अब केवल 2 रन चाहिए।